بلٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں۔ عرب اتحاد کا یمن میں UAE سے آنے والے 2 بحری جہازوں پر فضائی حملہ۔ ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امارات سے ہتھیاروں کی کھیپ حضرت موت پہنچائی جا رہی تھی۔ سعودی عرب نے UAE سے 24 گھنٹے میں اپنی فوج واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ برادر ملک کے اقدامات پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر رد عمل دیا جائے گا۔ جنوبی صوبے حضرت موت میں کشیدگی کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ یمن میں بھی امارات سے مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ یمن کے صوبے حضرموت میں کشیدگی سعودی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ سعودی عرب کا متحدہ عرب امارات سے اپنی افواج 24 گھنٹے میں نکالنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا یمن میں برادر ملک متحدہ عرب امارات کے اقدامات پر مایوسی ہوئی۔ قومی سلامتی سعودی عرب کی ریڈ لائن ہے، کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر رد عمل دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات یمنی حکومت کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں اپنی افواج واپس بلا لے۔ اس سے پہلے عرب اتحاد نے اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 2 بحری جہازوں کو یمن کی مکلا بندرگاہ پر نشانہ بنایا۔ عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی کے مطابق حملہ یمنی صدارتی کونسل کی درخواست پر عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ بحری جہازوں سے بغیر اجازت ہتھیار اور بختر بند گاڑیاں اتاری جا رہی تھیں۔ یمنی صدارتی کونسل کے سربراہ شاد محمد العلیمی کے مطابق بحری جہاز UAE کی فجیرہ بندرگاہ سے روانہ ہو گئی تھی۔ چیئرمین یمنی صدارتی کونسل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ دفاعی معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے یمنی سرزمین سے اپنی افواج نکالنے کا مطالبہ کیا۔ UAE نے سعودی عرب اور یمنی حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا سعودی عرب کے بیان پر مایوسی ہوئی، فضائی حملے پر بھی حیران ہے۔ کھیپ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے لیے مکمل احترام کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں تاکہ کشیدگی نہ بڑھے۔ فریقین کو مشترکہ مفادات کا تحفظ اور یمن کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ ایران اور عمان کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ عباس اراغچی کا خطے کے ممالک کے درمیان امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ کہا یمن کی وحدت اور جغرافیائی سالمیت کا تحفظ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک خطے میں انتشار پھیلانے والوں کا مل کر مقابلہ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف رحیم یار خان پہنچ گئے۔ خصوصی طیارہ شیخ زاید ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف UAE کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ مختصر دورے کے دوران میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف رحیم یار خان پہنچ گئے۔ خصوصی طیارہ شیخ زاید ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف UAE کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ مختصر دورے کے دوران میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ساتھ موجود ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور اب بات کریں پاکستان کا روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر حملے پر اظہار تشویش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ایسے واقعات سے تنازع کے پرامن حل کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ فریقین بات چیت سے معاملے کو آگے بڑھائیں۔ حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل اور ذمہ داری ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذمت کرتے ہوئے کہا حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل اور ذمہ داری ضروری ہے۔ پاکستان روس کے صدر حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ تشدد اور امن خطرے میں ڈالنے والی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ دیگر خبروں کو بلٹن کا حصہ بناتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ننھے دلبر کی موت کا ذمہ دار کون؟ 24 گھنٹے بعد بھی تعین نہ ہو سکا۔ ماں باپ کا اکلوتا 8 برس کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ انتظامیہ سوتی رہی۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں دوسرے روز بھی فضا سوگوار ہے۔ والد نے واقعے کا ذمہ دار ٹاؤن چیئرمین کو ٹھہرا دیا۔ لیاقت علی رانا رپورٹ کریں گے۔
कराची में नन्हे दिलबर की मौत सिर्फ हादसा नहीं, पूरे निजाम पर सवालिया निशान है। 24 घंटे से जायद गुजर चुके मगर अब तक ये तय न हो सका कि आखिर इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 बरस के दिलबर की मौत पर दूसरे रोज भी हर आंख नम, हर दिल सोगवार है। वालिद ने टाउन चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया है। तसल्ली देने के क्या, हमारी लाश पड़ी हुई थी, वो इधर झगड़ा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, तसल्ली कहाँ थी, और लड़के चले गए ऐसे ही। दूसरी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, उन्हों को जिम्मेदार समझते हैं, मेहरबानी करके ढकने लगाया जाए। लावारिस कराची में हर खुला मेन हॉल सरकारी नाकामी की निशानी है। किसी की लख्ते जिगर कोई चला जाए ना अगर आपके यहाँ से, तो पता लगेगा आपको कि ये क्या होता है। जाएं पूछें जिनके बच्चे चले गए, उनसे पूछें, उनके माँ बाप से पूछें क्या उनके ऊपर बीत रही है और क्या उनके ऊपर गुजर रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि गटर के जितने भी जो भी कवर्ड हैं उनके कवर्स को कवर्ड करें ताकि हमारे बच्चे सिक्योर रहें, बाहर जाने हम अपने बच्चे। कराची के अंदर जिनको मेयर बनाया गया, अगर हमसे सवाल भी करते हैं, कुछ कहते भी हैं, तो वो कहते हैं लोग सियासत कर रहे हैं। तो ये बाहों के लाल घर से निकल रहे हैं तो नालों में जा रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा हमारे को। वाक़े के बाद से अब तक कोई जिम्मेदार मुअत्तल हुआ न कोई जवाबदही हुई। शहरी सवाल करते हैं अगर यही बच्चा किसी अफसर का होता तो क्या निजाम इतना खामोश रहता। कराची में एक और बच्चा मैनहोल में गिरकर जान से गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समा का एक बार फिर मेयर कराची से सवाल। मुर्तज़ा वहाब से कोई जवाब न बना। अनोखी मंतक देते हुए कहा इंतजामी गफलत नहीं, वाक़े बदकिस्मती से पेश आया। मेहरान टाउन वाक़े में गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने साइड पर रख दिया था। सवाल पता है सर, बताइए। नहीं, मैं आपको पता है, चले फिर आप जवाब दे दें अगर आपको पता है। चलें, रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात सर। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि कल एक और बच्चा गटर में गिरकर मरा। आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, आपकी मेयरशिप कोई लूट का माल नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। तो ये जो विचार अभियान, उसके बाद फिर मुर्तज़ा, इब्राहिम और फिर अब दिलबर, ये जो मरे ये भी तो किसी माँ के जियाले हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्ड होने के बाद ये वायरल होगा। मसला बदकिस्मत ये है, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ, वैसे मेरे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, वाक़े के नेक्स्ट डे आ जाते हैं, और अगर मैं सवाल इनका नहीं लेता तो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बड़े खंदा पेशानी के साथ आपकी तकरीर को मैंने सुना। सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है, कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। जबकि सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सूबे के बल्दियाती निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं नीपा के बाद कोरंगी मेहरान टाउन का वाक़या इंतज़ामी नाअहली है। बल्दियाती कानून में इतनी जान नहीं कि लोगों की जान बचाई जा सके। अली खुर्शीदी का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं हफीज़ बलोच से जो अपोजिशन लीडर के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कराची शहर में खुले मैनहोल्स में एक और बच्चा गिरकर अपनी ज़िंदगी गंवा चुका है। इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्दियाती इदारों के जो सरबरान हैं एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं इन वाक़यात का असल ज़िम्मेदार कौन है? अब लगाते रहिए इल्ज़ाम कि KMC की जुरिडिक्शन थी या TMC की जुरिडिक्शन थी या UC का डोमेन था या UC का मैंडेट था या वाटर बोर्ड का ज़िम्मेदारी थी। ये वो सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। बुनियादी बात यह है कि जो सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुरवजा आज के वक्त में राइज है उसमें इतनी जान ही नहीं है कि वो लोगों को डिलीवर कर सके, इसीलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। जब नीपा वाला वाक़या हुआ था मैंने कहा था ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है, इसके बाद खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कि वाक़यात दोबारा होंगे। आपके सामने के कोरंगी मेहरान टाउन में ये वाक़या हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर हमें प्रॉपर रोकथाम करनी है, देखिए OZT में शेयर बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए अलग से दे दिए, वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान जो है मुतारिक हो गए, ये सब जो है वो कॉस्मेटिक है। बुनियादी मसला वो है इंतज़ामी नाअहली, क्योंकि जिस एक्ट के थ्रू ये सारे काम देखे जा रहे हैं उस एक्ट में इतनी जान ही नहीं है कि वो लोगों की जानें बचा सके और लोगों को सहूलियात दे सके। जी बिल्कुल, बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन लीडर ने सवालात उठाए। उनका मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को मज़ीद माली तौर पर मुस्तहकम किया जाए ताकि इस तरह के हादसात रूनुमा ना हो सके। हफीज़ बलोच आपका शुक्रिया। कराची में खुले मैन होल्स में गिरने से बच्चों की अमवात के वाक़यात। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र खान के कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को नाअहल इदारा करार दे दिया। कहते हैं किसी और पर जिम्मेदारी डालना मसाइल का हल नहीं, ढक्कन रखने के लिए टाउन्स पर मलबा डालना जिम्मेदारियों से राह फरार है। एक जानिब इस शहर में बच्चे गटरों में डूब रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं। 27 वाक़यात सिर्फ इस साल पेश आ चुके हैं। आप कहते रहें ये काम लांडी को करना था, ये कुरंगी को करना था, ये शाह फैसल टाउन को करना था, ये गुलशन टाउन को करना था, गटर के ढक्कन उनको लगाना थे। ये सिर्फ
अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार है। जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कबूल कीजिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इस वक्त एक नाअहल इदारा है। वो नाअहल इदारा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। किसी और पर जिम्मेदारी डाल देना ये मसाइल का हल नहीं है। कराची में खुले मैन होल्स बच्चों के लिए खतरा बन गए। औरंगी टाउन गौसिया बलोच कॉलोनी में बेशतर मकामात पर खुले नाले और मैन होल्स मज़ीद किसी हादसे का सबब बन सकते हैं, मगर अफसोस कि इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में खुले मैन होल्स बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो जाता है कि किसी वालिदैन का लख्ते जिगर उनसे जुदा हो जाता है। बच्चा गिरता है, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, उसको बात समझ में नहीं आता है, हम बोलते नहीं जाओ, आएगा गिरेगा, फिर अब बड़ा वाला हादसा होएगा, फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे का जिम्मा कौन लेगा? ये हुकूमत का गटर का ढकना लगाएगा। मरे हुए जिंदा थोड़ी है, अगर जिंदा होते तो लोगों का बात सुनते, इंक्वायरी करते और सर्वे करते, देख लेते ना कि क्या हो रहा है इलाके में। ये मुर्दों का काम है ना नज़रअंदाज करना, जिंदों का थोड़ी काम है। जमील डायरी का पास गए, अलीजान के पास गए, मुर्तज़ा वाब को लेटर दिए हैं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। जब ढक्कन ही नहीं होंगे तो माँ के लाल तो जाएंगे सबके। मेयर कराची को बोलना आप इस तरफ भी आ जाए ना, औरंगी टाउन गौसिया बलोच कॉलोनी पे भी आ जाएं आप, ज़रा आइए, भी आप लोगों का इलाका है। पहले इलाका की जानिब से गली में खुले मैन होल्स पर दरख्त की लकड़ियां और तख्ते रखकर महफूज इक़दामात किए गए हैं ताकि बच्चों को किसी भी बड़े हादसे से बचाया जा सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इकरा अवान, समा, कराची।